Hello my dear students, this is Kiran Mataru. How are you all? Hope you all are doing great. Yes my dear students, today we'll start reading of lesson number 10, A Hole in the Fence. Okay, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 9 ਚੈਪਟਰਸ ਤੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੈਸਨ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ 1 by 1 ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ ਫਾਈਨਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 10। ਹੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰਾਖ ਜਾਂ ਛੇਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਾੜ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਨਿਊ ਵਰਡਸ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ 1, look up the following words or phrases in a dictionary. You should seek the following information about the words and put them in your words notebook. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ number 1, meaning of the word as used in the story, adjective, noun, verb, etc. Number 2, pronunciation. The teacher may refer to the dictionary or the mobile phone for correct pronunciation. Number 3, spellings. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨਿੰਗਸ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨੀਚੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈਗਾ ਫੈਂਸ, ਇਹਦਾ ਲਿਖ ਲਓ ਵਾੜ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੋਕਣਾ। ਹੈਮਰ ਹਥੌੜਾ। ਐਕਸੈਪਟ ਸਵੀਕਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਇਹਦਾ ਲਿਖ ਲਓ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਘਾਟ ਹੋਣੀ। ਡਿਸਕਵਰ ਖੋਜਣਾ। ਟੈਂਪਰ ਸੁਭਾਅ। ਸਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਵੋਨ ਜ਼ਖਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਰੀਡ ਦ ਸਟੋਰੀ A Hole in the Fence. Once there was a little boy who lived with his parents in a small village. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। His parents were worried because he had a bad temper. ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। Worried ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। He had no friends because he always used bad language in a fit of anger. ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਬੁਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। His parents advised him many times to control his anger, but he didn't pay attention. ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। The father kept thinking and then he got an idea. ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ। The next day his father gave him a bag of nails and a hammer. ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੈਗ ਤੇ ਹਥੌੜਾ ਦਿੱਤਾ। He said to him, every time you lose your temper you must hammer a nail into the back of the fence. ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੇਲ ਆ, ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦੇਣਾ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ। The boy accepted the task happily. ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। Every time the boy felt angry he ran to the fence and drove a nail into it. ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਾੜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਗੱਡ ਦਿੰਦਾ। The first day the boy had driven 30 nails into the fence. ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 nails ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ 30 ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। After a few days the number of nails started decreasing. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਲਾਂ ਸੀ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। Over the next few weeks he discovered that it was easier to. ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਬੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਮਰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਫੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੇਟ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨੇ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਨੇਲਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੇਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। It was easier to control his anger than to drive those nails into the fence. ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ
कि गुस्से नूं कंट्रोल करना ज़्यादा सौखा आ बजाए इस दे कि फैंस दे विच जाके हथौड़े दे नाल किल्लां गड्डियां जाण। ठीक है, वो कहता इस तो तां बैटर है कि गुस्से नूं ही कंट्रोल कर लिया जाए। Finally, the day came when the boy did not lose his temper at all. ते अंत विच ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। He had not hammered any nail into the fence. ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। He told his father about it. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। The father gave him one more task to do. ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। He asked the boy to pull out one nail for each day that he was able to hold his temper. ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। The days passed and the little boy was finally able to tell his father that all the nails were gone. ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਲ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਲਸ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦ ਫਾਦਰ ਲੈਡ ਦ ਲਿਟਲ ਬੋਏ ਟੂ ਦ ਫੈਂਸ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਹੀ ਸੈਡ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਵੈਲ ਮਾਈ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ। ਨਾਓ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀਜ਼ ਹੋਲਸ ਇਨ ਦ ਫੈਂਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਦ ਫੈਂਸ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਬੀ ਦ ਸੇਮ ਅਗੇਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਫੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦ ਬੋਏ ਲੁੱਕਡ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਸੈਡ ਆਈ ਡਿਡ ਇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਸਕਡ ਮੀ ਟੂ ਡੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। I know, said the father. When you say things in anger, they leave a scar just like this one. ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ। You can put a knife in a man and draw it out. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਚਾਕੂ ਖਵੋ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਦੁਬਾਰਾ। It won't matter how many times you say you are sorry. The wound will always be there. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। A wound given with your words is as bad as the one given with a knife. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਹੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਤਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫੈਂਸ, ਇਹਨੂੰ ਫੈਂਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੋਏ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਲਸ, ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਰ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। Don't you think the father gave a good piece of advice to the boy? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। Friends and loved ones are very important in our lives like you are for us. ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਦੇ ਮੇਕ ਯੂ ਸਮਾਈਲ ਐਂਡ ਲਾਫ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਵਿਦ ਯੂਰ ਵਰਡਸ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡਸ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਬੋਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੈਟ ਯੂਰ ਵਰਡਸ ਬੀ ਕਾਇੰਡ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੋਰਲ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ
ते अपने पेरेंट्स के नाल भी। ठीक है, हुण आपां नैक्सट बुक एक्टिविटीज़ करते हैं जी। पोस्ट रीडिंग वोकैबुलरी एक्सपेंशन एक्टिविटी 2 सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल गिवन बिलो। नीचे एक क्रॉसवर्ड पजल दी हुई है, उन्होंने सॉल्व करो। रीड द हिंट्स और मीनिंग्स फॉर द वर्ड्स गिवन अंडर अक्रॉस एंड डाउन। तो नीचे तुहानूं हिंट भी दिते हुए आ क्रॉस और डाउन दे लई, उहनूं पढ़ लो। ठीक है, द वर्ड्स आर फ्रॉम द स्टोरी, तो सारे वर्ड स्टोरी दे विचों ही लए हुए आ जी। सब तो पहला अक्रॉस वाले वर्ड्स आपां देख लैंदे आ। अक्रॉस नंबर 5 ते लिखा हुआ एबल टू मैनेज। हाँ जी, नंबर 5 देखते हैं इत्थों पिक्चर च कित्थे हैगा। हाँ जी, ए सी नंबर 5 अक्रॉस। हाँ जी, हुण इत्थे की हैगा, की आएगा इत्थे एबल टू मैनेज। एबल टू मैनेज इत्थे आएगा कंट्रोल। ठीक है, एबल टू मैनेज इत्थे आएगा कंट्रोल, CONTROL। ठीक है, सो इस बॉक्स दे विच तुसीं कंट्रोल लिख देना। नैक्सट इज़ नंबर 6 फाइंड समथिंग न्यू। हाँ जी, हुण ये देखो नंबर 6 ते कित्थे लिखा होया फाइंड समथिंग न्यू। हाँ जी, नंबर 6 आ हैगा क्रॉस च। इत्थे तुसीं लिखोगे डिस्कवर, DISCOVER। ठीक है, सो इस बॉक्स दे विच तुसीं डिस्कवर लिख देना। नैक्सट है टू टेक समथिंग। टू टेक समथिंग का की आएगा 7 नंबर देखो आ सी एक्सैप्ट, ACCEPT। ठीक है, इस बॉक्स तुसीं एक्सैप्ट लिख देना। हाँ जी, नैक्सट हैगा बेरियर नंबर 9। हाँ जी, नंबर 9 कित्थे हैगा आ सी क्रॉस दा। हाँ जी, नंबर 9 च तुसीं लिखोगे फेंस। हाँ जी, इस बॉक्स च लिख दो फेंस, FENCE। ठीक है, हाँ जी, नंबर 10 अ मार्क ऑन द स्किन। हाँ जी, इत्थे लिख दो टीयर, नीचे हैगा TEAR। ठीक है, इत्थे लिख दो टीयर। हाँ जी, हुण डाउन वाले देखते हैं। इत्थे नंबर 1 ते हैगा हिट समथिंग हार्ड। हाँ जी, हुण आ सी उपर 1 नंबर। इस बॉक्स दे विच तुसीं की लिखोगे हैमर, HAMMER। ठीक है, हैमर। नंबर 2 ते हैगा अ टीयर इन द स्किन। हाँ जी, हुण इत्थे की आएगा वून। आपां देखदे आ सी WOUND। ठीक है, नैक्सट इज नंबर 3 बिकम लैसर और स्मॉलर। हाँ जी, हुण इहदे च आएगा डिक्रीज। हाँ जी, हुण देखो नंबर 3 कित्थे हैगा, नंबर 3 असी इहदे विच नीचे तक तुसीं लिख दो डिक्रीज, DECREASE। ठीक है, डिक्रीज। नैक्सट इज नंबर 4 गाइडिंग समवन। हाँ जी, हुण इहदा आएगा गाइडिंग समवन नंबर 4 ते एडवाइज, ADVISE अ स्टेट ऑफ बीइंग एंग्री और काम। हाँ जी, इहदे च लिख दो टैंपर। हाँ जी, कित्थे हैगा हुण आ सी नंबर 8, इत्थे लिख दो टैंपर, TEMPER। ठीक है, तो टैंपर लिख दो। चलो नैक्सट देखते हैं जी। लर्निंग टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड एक्टिविटी 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज ब्रीफली एज यू कैन। नीचे क्वेश्चंस लिखे हुए चैप्टर दे विचों, इन्हां दे आपां आंसर देने आ। ठीक है, चलो देखते हैं। एक्टिविटी 3 क्वेश्चन नंबर 1 वाई डिड द बॉय हैव नो फ्रेंड्स। हाँ जी, हुण उस बॉय दे उस लड़के दे क्यों फ्रेंड्स नहीं सन। आंसर द बॉय हैड नो फ्रेंड्स बिकॉज ही ऑलवेज यूज्ड अ बैड लैंग्वेज इन अ फिट ऑफ एंगर। उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं सी क्योंकि वो हमेशा ही गुस्से दे विच बुरी भाषा का इस्तेमाल करता सी। क्वेश्चन नंबर 2 वाई वर हिज पेरेंट्स वरीड। हाँ जी, उसके माता पिता क्यों चिंतित सन। हिज पेरेंट्स वर वरीड बिकॉज ही हैड अ बैड टैंपर। हाँ जी, क्यों वो चिंता करते सी उसके पेरेंट्स, क्योंकि वो गुस्से नाल बोलदा सी, उसका जिहड़ा सुभाਅ सी वो बुरा सी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 वॉट टास्क डिड हिज फादर गिव टू डू। उसके पिता ने उसनूं किहड़ा काम करन लई किहा सी। आंसर हिज फादर गेव हिम अ बैग ऑफ नेल्स एंड हैमर एंड सैड एवरी टाइम यू लूज योर टैंपर यू मस्ट हैमर अ नेल इनटू द बैक ऑफ द फेंस। हाँ जी, उसके फादर ने उन्होंने एक किल्लां दा बैग ते हथौड़ा दिता सी ते कहा सी कि जदों भी तैनूं गुस्सा आवे, ठीक है, तू एक किल जाके फैंस दे विच कड्ड दें हथौड़े दे नाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डिड इट हैल्प द बॉय।
जी इस चीज़ ने लड़के की किवें हेल्प की सी। बाय हैमरिंग नेल्स ही डिस्कवर्ड दैट इट वॉज ईजीयर टू कंट्रोल द एंगर मिसप्रिंट हैगा। इट वॉज ईजीयर टू कंट्रोल द एंगर दैन टू ड्रॉ नेल्स। हाँ जी हुण उहनूं ये पता लग गया सी कि जिहड़ी फैंस हैगी आ उहदे च किल्लां कड्ढण दी बजाए गुस्से नूं कंट्रोल करना ज़्यादा ईजी है। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन नंबर 5 वट डिड द फादर टैल हिम आफ्टर ही हैड टेकन आउट ऑल द नेल्स। जदों उसने सारियां नेल्स कट दित्तियां सी तां उस तो बाद पिता जी ने उहनूं की कहा सी। द फादर टोल्ड हिम दैट अ वूंड गिवन विद द वर्ड्स इज़ एज बैड एज द वन गिवन विद द नाइफ। हाँ जी उसके पिता जी ने कहा सी कि किसी नूं जिहड़ा शब्दां दे नाल दित्ता गया जख्म वो भी उन्ना ही बुरा हुंदा जिन्ना कि किसी नूं चाकू दे नाल दित्ता गया जख्म। क्वेश्चन नंबर 6 वट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। हाँ जी इस स्टोरी तो तुहानूं सिक्ख्या मिलती है। आंसर वी शुड बी पोलाइट टू अदर्स एंड यूज़ काइंड वर्ड्स। हाँ जी सानू दूजिਆਂ ਦੇ प्रति निमरता रखनी चाहिए आ ठीक है तो सानू काइंड वर्ड्स जिहड़े आ निमरता भरे वर्ड्स जिहड़े आ वो बोलने चाहिए। एक्टिविटी 4 राइट ट्रू और फॉल्स इन द स्पेस गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हाँ जी नीचे ट्रू फॉल्स है गया आप स्टेटमेंट के सामने लिखने आ कि ट्रू है या फॉल्स है। नंबर 1 द बॉय हैड मैनी फ्रेंड्स। बॉय दे बहुत सारे फ्रेंड सी ਇਹਦਾ ਕੀ आएगा फॉल्स। इत्थे फॉल्स कर दो मैं क्रॉस लगाया तुसी एफ लिख दिओ। हाँ जी नंबर 2 ही हैड अ हैबिट ऑफ यूजिंग बैड लैंग्वेज। हाँ जी वो बुरी भाषा का इस्तेमाल करता सी ये की आएगा ट्रू। हाँ जी नैक्सट नंबर 3 हिज मदर केम अप विद द प्लान टू हेल्प हिम। उससे मदर आई सी एक प्लान लैके कि उन्होंने हेल्प की जा सके नो इत्थे भी आएगा फॉल्स उसके फादर ने उसकी हेल्प की सी। नंबर 4 द बॉय हैमर्ड 9 नेल्स इनटू द फेंस ऑन द फर्स्ट डे। हाँ जी बॉय ने फेंस दे विच पहले दिन 9 नेल्स लगाइयां सी नो उन्हें फर्स्ट डे कितनियां लगाइयां सी 30 नेल्स। हाँ जी नैक्सट इज नंबर 5 द बॉय नैवर लर्न टू कंट्रोल हिज टैंपर। लड़के ने ये सीखिया ही नहीं सी कि गुस्से नूं किस तरह कंट्रोल किया जा सकता नहीं उन्हें सीख लिया सी है ना सो ये भी की हैगा फॉल्स है। एक्टिविटी 5 सिलेक्ट द करैक्ट ऑप्शन एंड फिल इट इन द गिवन ब्लैंक। हाँ जी नीचों सिलेक्ट करनी है ऑप्शन तो जो भी आंसर है उन्होंने स्पेस दे विच फिलिंग द ब्लैंक जिहड़ियां दित्तियां उहदे च लिख देना। नंबर 1 द लिटिल बॉय वॉज डैश बाय अदर बॉयज़। पॉपुलर लाइक्ड डिसलाइक्ड। लिटिल बॉय नूं दूसरे लड़कियां दे द्वारा की किया जांदा सी डिसलाइक्ड। हाँ जी नंबर 2 द बॉय हैड नो फ्रेंड्स बिकॉज। बॉय दे कोई भी फ्रेंड्स नहीं सी क्योंकि he used bad language because he used bad language. Number 3 his father thought of a plan. His father thought of a advice to give him task to give him reason for his behavior. हाँ जी हुण इत्थे क्या आएगा advice to give him उस 4 the father asked the boy to dash whenever he felt angry. Drive a nail into the fence कि उदों ही वो जाके फैंस दे विच नेल लगा देवे। नंबर 5 द फादर वॉज एबल टू डैश हिम अ लैसन अबाउट गुड बिहेवियर। हाँ जी की आएगा शो टीच या मेक टीच। हाँ जी द फादर वॉज एबल टू टीच हिम ठीक है तो आएगा टीच। हाँ जी नेक्स्ट हैगा लर्निंग लैंग्वेज सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिते हैं रीड करो। नंबर 1 अमित इज़ अ गुड एक्टर। Number 2 where are you going? Number 3 Seema works very hard. Number 4 what a beautiful day. Number 5 Chandigarh is the capital of Punjab. हाँ जी प्लीज़ नोट दैट ऑल दी सेंटेंसेस। हाँ जी हुण तुसीं उपर बड़े सेंटेंस देखे तो इन्हां विचों तुसीं कोई चीज़ नोट भी की होएगी। नंबर 1 ते की है बिगिन विद कैपिटल लैटर्स ये सारियां दा फर्स्ट लैटर की सी कैपिटल। नंबर 2 एंड विद द फुल स्टॉप अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। जिथे भी एक सेंटेंस खत्म होंदा उहदे लास्ट दे विच जां तां फुल स्टॉप सी जां क्वेश्चन मार्क सी जां फिर एक्सक्लेमेशन मार्क सी। नोटिस दैट दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस। हाँ जी हुण तुसीं देखिया होएगा कि जिहड़े भी सेंटेंस सी इन्हां दी एक कंप्लीट सेंस सी मीनस इह चों आपां नूं एक क्लीयर कोई गल समझ आउंदी सी। नाउ रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हुण नीचे वाले जिहड़े ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उहनूं देखो पॉट फ्लावर्स द आर इन। डू दीज वर्ड्स मेक सेंस। हाँ जी कि जिहड़ी ये लाइन जिहड़ी लिखी हुई है ये चों आपां नूं कोई सेंस पता लगदी है कुछ क्लीयर होंदी गल नो दे आर मेयरली 6 वर्ड्स दैट डू नॉट मेक एनी सेंस। ये तां सिर्फ 6 वर्ड्स दिते हुए आ ते इन्हां दी कोई भी सेंस नहीं हैगी।
नैक्सट है नाउ रीड द सेम वर्ड्स इन अनदर ऑर्डर। हाँ जी, हुण उही शब्दां नूं उही वर्ड्स नूं एक होर ऑर्डर दे विच पढ़ो। द फ्लावर्स आर इन द पॉट। डू दीज वर्ड्स मेक सेंस? हुण ये वाले वर्ड जिहड़े कोई सेंस बनाउंदे आ? यस, दे मेक अ कंप्लीट सेंस, क्योंकि हुण आपां नूं विचों सारी गल क्लीयर हुंदी आ। द फ्लावर्स आर इन द पॉट कि फ्लावर्स जिहड़े आ ओह पॉट दे विच हन। ठीक है। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। हाँ जी, यह डेफिनेशन है कि सेंटेंस की कि सेंटेंस एक अजिहे शब्दों का ग्रुप हुंदा जिहड़े कि एक कंप्लीट सेंस बनाउंदे आ। ठीक। द 3 थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर अबाउट अ सेंटेंस आर दैट। तुसी किसी भी सेंटेंस के लिए आ नीचे वाली 3 गल्लां याद रखनियां। पहली, द वर्ड्स मस्ट बी प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस। सब तो पहला कि जिहड़े वर्ड्स है उन्होंने एक प्रॉपर सीक्वेंस दे विच रखना हुंदा, प्रॉपर ऑर्डर दे विच रखना हुंदा, ताकि उहदे तो आपां नूं क्लैरिटी हो जाए, कंप्लीट सेंस उहदी क्लीयर हो जाए। नंबर 2, द फर्स्ट वर्ड मस्ट बिगिन विद द कैपिटल लैटर। दूसरी गल, सेंटेंस का फर्स्ट लैटर हमेशा ही कैपिटल होना चाहिए। नंबर 3, द सेंटेंस मस्ट एंड विद द फुल स्टॉप, a question mark और an exclamation mark। तो जिथे भी सेंटेंस खत्म होंदा उहदे अकॉर्डिंग ही उत्थे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। एक्टिविटी 6, रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड पंचुएट टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। हाँ जी, नीचे कुछ वर्ड्स दिते हुए हैं, इन्हों आप रीअरेंज करना तो ताकि ये एक प्रॉपर सेंस बन जाए, तो इनू आप पंचुएट भी करना। ठीक है, आप भी देखना कित्थे फुल स्टॉप लगना, कित्थे क्वेश्चन मार्क लगना। ओके। नंबर 1, फेरोशियस लायंस एनिमल्स आर। हाँ जी, हुण इनू आप ठीक तरह लिखांगे, इत्थे की बन जाएगा फिर ये लायंस आर फेरोशियस एनिमल्स। ठीक है, तो पिछे फुल स्टॉप। नंबर 2, लव ग्रैंड पेरेंट्स अ माई मी लॉट। हाँ जी, हुण इहदा की बनेगा, ग्रैंड पेरेंट्स लव मी अ लॉट फुल स्टॉप। ठीक है। नंबर 3 तो है इज़ माई बेस्ट राजन फ्रेंड। हाँ जी, हुण इहदा की बनेगा, राजन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड फुल स्टॉप। हाँ जी। नंबर 4 तो है मरक्यूरी सिस्टम इन इट्स द हॉटेस्ट द प्लैनेट सोलर। हाँ जी, हुण इहनूं आपां ठीक करके किस तरह लिखांगे, मरक्यूरी इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम फुल स्टॉप। हाँ जी। नंबर 5, इज़ द गैंजेस सेक्रेड अ रिवर। हाँ जी, हुण लिखोगे द गैंजेस इज़ अ सीक्रेट रिवर फुल स्टॉप। सो अज आप एक्टिविटी 6 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, तो नैक्सट वीडियो लैसन आप नैक्सट एक्टिविटी कंटिन्यू करांगे। उन्ना टाइम तुसी ये वालियां रिवाइज कर लो ते अपनी फिर नोटबुक्स के उपर नोट डाउन भी कर लो। तो जे बेटा तुसी चैनल सबसक्राइब अजे तक नहीं किया तो चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो। ठीक है, और बैल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि तुहानूं वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। तो तुसी इसी चैनल ते अपने SST और इंग्लिश का सारा सिलेबस भी देख सकते हैं। तो जे वीडियो लैसनस तुहानूं वधिया लगदे आ दैन यू हैव टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वैल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।